Hello, I am Naresh Kumar Rana, PhD Computer Science, Kendriya Vidyalaya, Alilalkand, Himachal Pradesh. My topic is tuples. So before starting the topic tuples, I am using for explaining the concept of tuple in both languages, English as well as Hindi, so that student can understand easily. So in this chapter, we will study about tuple definition, creation of a tuple, traversal of a tuple, nested tuple, operation on tuple, concatenations, repetition, membership, tuple slicing, function or method, length function, tuple function, count function, index function, sort function, minimum function, max function, sum functions. Finding the maximum, minimum, mean of a value sorted in a tuple. Linear search on a tuple of numbers containing the frequency of element in a tuple. So let us start with tuple. A tuple is a collection which is ordered and unchangeable. But does it mean unchangeable? Unchangeable means that we cannot change the element of tuples. In Python, tuples are written with round bracket. Tuple is a ordered sequence of elements of different data types such as your integer, float, string, list और even tuples. टप्पल जो है टप्पल के अंदर जो हमारे पास डाटा स्टोर रहेगा, एलिमेंट स्टोर रहेंगे, उसमें इंटीजर हो सकते हैं, फ्लोट वैल्यू हो सकती है, स्ट्रिंग और लिस्ट. एलिमेंट ऑफ अ टप्पल आर इंक्लूज इन पैरेंथेसिस एंड सेपरेटेड बाय कॉमा. जब भी हम लोग लिस्ट के टप्पल्स के एलिमेंट्स को लिखेंगे तो हर एक एलिमेंट के बाद हम कॉमा को यूज़ करेंगे. अगर हम कॉमा नहीं लगाएंगे तो वो जो हम एलिमेंट उस टप्पल के अंदर लिखेंगे तो या तो वो इंटीजर उसको ट्रीट कर देगा या स्ट्रिंग ट्रीट कर देगा उसको. ठीक है, तो जब भी हमने टप्पल बनाना है तो हमें हर एक एलिमेंट के बाद कॉमा को यूज़ करना है. लाइक योर स्ट्रिंग लिस्ट एलिमेंट ऑफ अ टप्पल कैन बी एक्सेस बाय यूजिंग index value starting from 0. So as we have already studied in the chapter list and string, the element can be accessed by using its index number. So let us start how to create a tuple. A tuple is enclosed in a parenthesis. For creation of and each element is separated by comma. So let us there are some example of tuples in Python. This is your empty tuples, simple round bracket. In parentheses we have 1 2 3 4. This is a tuple of integer. Then this is tuple of numbers which contain integer as well as float value. Here is a tuple of mixed value. This tuple contains string as well as integer value. So to create a tuple we can write in the form given below. So t is equal to parenthesis, but does mean this is a tuple, and t is equal to value comma so on. So while we are writing a value we can use a tuple. So how we can create an empty tuples? To create empty tuple is created by your built-in function tuple functions. built-in function tuple. तो ये जो हमारे पास tuple है, ठीक है, तो इसको यूज़ करके हम empty जो है tuple क्रिएट कर लेंगे. अब इसमें जैसे हम लिखेंगे, यहाँ पे मैंने कोडिंग के लिए
साथ के साथ यूज़ किया है जुपिटर नोटबुक। सो यहाँ पे हमने लिखा टी इज इक्वल टू टप्पल एंड प्रिंट टी। जब हम इसको रन करेंगे तो हमारे पास सिंपल है एक एम्प्टी टप्पल प्रिंट करेगी। A single element tuples, to create a single element tuples we have to include the final comma. How? यहाँ पे हमने t लिखा 1, प्रिंट t कर दिया, ठीक है। जब सिंपल हमने t यूज़ किया तो हमारे सिंपल 1 प्रिंट हो गया। आगे मैंने t इज इक्वल टू 1, यहाँ पे मैंने कॉमा नहीं यूज़ किया तो अगेन 1 आया। जब t इज इक्वल टू किया मैंने 2 कॉमा, तो ये जो है t इज इक्वल टू प्रिंट t किया तो इसमें हमारे पास 2 क्या हुआ, यहाँ पे किस में आ गया एलिमेंट हमारे पास, ये किस में पैरेंथेसिस के अंदर हमारे एलिमेंट हमारे पास इसमें प्रिंट हुआ। तो जब ये टप्पल बनाएंगे तो जो भी एलिमेंट लिखेंगे उसके बाद हम कॉमा को यूज़ करेंगे। देन लॉन्ग टप्पल्स, इफ़ अ टप्पल कंटेन्स मैनी एलिमेंट्स देन टू इंटर सच लॉन्ग टप्पल्स। सो इसमें हम a इज इक्वल टू 1 2 3 4 16 32 64 120 256 प्रिंट a। तो यहाँ पे ये क्या किया हमने, ये जो टप्पल थी a इसको हमने प्रिंट कर लिया। तो ये हमारे पास इस टप्पल, कौन सी टप्पल, a के अंदर हमारे पास एलिमेंट 1 2 4 16 32 64 120 256 एलिमेंट इसके अंदर स्टोर हो गए। अब नेस्टेड टप्पल्स में क्या है कि इफ़ अ टप्पल कंटेन्स एन एलिमेंट विच इज अ टप्पल इटसेल्फ इज कॉल्ड नेस्टेड टप्पल्स। कि अगर हम टप्पल यूज़ कर रहे हैं और उसके अंदर हम दूसरे क्या है टप्पल के अंदर एलिमेंट ऐड किया और उसी में ही एज ए और टप्पल हमने उसको ऐड किया तो उसको हम बोलते हैं नेस्टेड टप्पल। एग्जांपल के लिए हमने लिखा t 1, 2 ये एलिमेंट हो गए, आगे ब्रैकेट यूज़ किया हमने 5, 6, 7 ब्रैकेट बंद कर दिया, तो ये हमारे पास क्या हो गए, ये नेस्टेड टप्पल हमारे पास क्रिएट हो गए। नेक्स्ट, ट्रावर्सल oblique accessing of a tuples. So element of a tuple can be accessed in a same way as a list or a string using indexing and slicing. So list element are also indexed, that is a forward indexing 1 2 3 and backward indexing, that is as -1 -2 -3. Forward means to say we are moving from left to right in a forward directions, and while we are moving from right to left, that is your backward. So let us understand with the help of example. This is a tuple. It contains 45 55 67 89. How many elements? 4. But the index value, forward index value we have your 0 1 2 3, and backward value we have your -1 -2 -3 -4. Simply keep in mind, while we are indexing from left to right, its value starting from 0 1 2 3 up to n -1, and in backward we have -1 -2 -3 and -4. So let us understand with the help of example. So t is equal to 10 20 30 50 and 70. We have here print t जब हम करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 10 20 30 और 70 हमारे पास वैल्यू, ये हमारे पास वैल्यू, हमारे पास इसमें ये वैल्यू आ जाएगी। अब ये जो वैल्यू है हमारे पास, ठीक है, इसमें अब हमने क्या किया इसमें कि ये जो था क्या लिखा हमने t0। अब t0 का मतलब क्या होगा, ये वाला फर्स्ट एलिमेंट, क्योंकि इसके इंडेक्सिंग करेंगे तो ये 0 आएगी, ये हमारे पास 1 रहेगा, ये 2 रहेगा और ये 3 रहेगा हमारे पास, और ये वैल्यू रहेगी हमारे पास 4। अब ये जो वैल्यू है हमारे पास, अब प्रिंट t, ये सिंपल हमने ये लिखा ना t0, ये हमने क्या यूज़ किया यहाँ पे, ये कंसेप्ट किसका यूज़ किया, ये लिस्ट वाला किसके अंदर, ये हमने यूज़ किया इसके अंदर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर उसकी क्या इंडेक्सिंग वैल्यू। जब t0 किया तो हमारा फर्स्ट एलिमेंट आ गया 10। जब हमने क्या लिखा t3, तो t3 के अंदर हमारे पास कितना आ गया 50। जब t-1 क्या होगा, ये -1, तो ये -1 का मतलब क्या होगा कि बैकवर्ड डायरेक्शन में फर्स्ट एलिमेंट, तो कितना आ गया 77। अगर मैं
टी इज इक्वल टू 4 लिखता हूँ, ठीक है, तो टी इज इक्वल टू 4 में क्या होगा, ये हमारे पास लास्ट एलिमेंट, ठीक है, एंड टी इज इक्वल टू -5 दैट इज योर क्या है, फर्स्ट एलिमेंट. सो टी इज इक्वल टू -5 और टी इज इक्वल टू 0, in both cases its value is same. And next we have here a tuple is immutables data type. As we have, immutables means to say unchangeable, which we have studied earlier. It means that the element of a tuple cannot be changed after it has been created. An element to do this leads to error. अगर हम टप्पल के एलिमेंट को चेंज करना चाहें तो हमारे पास एरर आ जाती है, ठीक है. तो ये देखिए हमने क्या किया, यहाँ पे ये एलिमेंट लिया टी 2 4 6 8 10. अब टी टू का मतलब कौन सा होगा, इंडेक्स नंबर 2 0 1 2 6. वी आर ट्राइंग टू चेंज द वैल्यू ऑफ 6/10. सो व्हाइल वी आर राइटिंग आई एम प्रिंटिंग द टी, तो इट विल क्या है, शो द टप्पल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट द असाइनमेंट. व्हाट डज मीन कि वी आर नॉट in a position to change the value of a tuple. And now operation of tuples. First operation concatenations. Concatenation we have means to say we have to join two tuples. So Python allows us to join tuples using the concatenation operator defined by the symbol plus symbol. So we can also create a new tuple which contain the result of these concatenations operations. So let us understand with the help of example. So here we have t1. T1 contains 1 3 5 7 9 and t2 contains 2 4 6 8 10. And here we have t3 which is equal to t1 plus t2. Here we are printing but t3. So the value of t3 is 1 3 5 7 9. यहाँ तक जो रहेगा हमारे पास ये टप्पल 1 की वैल्यू रहेगी, और ये जो है 2 4 6 8 10 ये रहेगी टप्पल 2. तो ये दोनों की हमारे पास कंबाइन वैल्यू हमारे पास अवेलेबल रहेगी. नेक्स्ट हमारे पास है कि अगर हमने दो स्ट्रिंग को ज्वाइन करना है, तो दो स्ट्रिंग को ज्वाइन करने के लिए सिंपल हमने क्या लिखा, क्लास 11 CS और Python tuples. So t3 is equal to t1 plus 2 t2. Print t3 is equal to class 11 CS Python tuples. And here is another example of concatenations. We are t4 11 12 13 14 15 and t5 is equal to t4 plus 16 17 ठीक है. So the value of this t5 is equal to 11 12 13 14 15. This is up to what, this is value of our tuple 4 and 16 17. This is value of tuple 5. So in this way we can join the two tuple. So next operation we have repetition. A symbol is defined by the symbol is. तो जब भी हम रेपिटेशन का यूज़ करेंगे तो एक तो हमारे पास क्या चाहिए, टप्पल चाहिए. टप्पल का होना चाहिए क्या, स्ट्रिंग. और दूसरा जिसको अब हमने रिपीट करना है वो क्या करना है, हमने एज ए इंटीजर वैल्यू हमने यूज़ करना है. तो इट इज़ यूज टू रिपीट द एलिमेंट ऑफ अ टप्पल. वी कैन रिपीट द टप्पल एलिमेंट. To repetition operator requires the first operand to be tuple, ये मैंने पहले बताया, and second element is an integer only. So एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं हम लोग. ये हमारे पास एक है tuple 1 हेलो बर्ड, इसके जो एलिमेंट दिए हैं 2 एलिमेंट हेलो बर्ड्स, और tuple 2 हमने लिखा tuple 1 स्टार 3. तो अभी क्या है कि जो tuple 1 के अंदर जितनी हमारे वैल्यू हैं, एलिमेंट हैं, वो कितने हैं, 3 टाइम आपके पास रिपीट कर जाएंगे टप्पल. ये बर्ड एक, सेकंड एंड थर्ड. अनदर एग्जांपल है टप्पल 1 के अंदर मैंने क्या लिखा, स्टार. ये क्या लिया, एज ए टप्पल यूज़ किया, और t2 इक्वल टप्पल 1 इंटू 10. तो ये क्या करेगा कि 10 टाइम को हमें क्या करेगा, स्टार प्रिंट कर देगा.
अगर ये चीज़ अगर हमने वैसे करनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 10 टाइम हमें क्या करना पड़ेगा, स्टार को हमें सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखना पड़ेगा, तभी हमारे पास ये प्रिंट होगा। तो जो रेपिटेशन ऑपरेटर सिंपली हम क्या करेंगे, एज ए टप्पल आर्गूमेंट देंगे और दूसरा के साथ जितने हमें जो टप्पल हमें रिपीट करने हैं उसको हम उतने टाइम के साथ उसको उसका इंटीजर वैल्यू दे देंगे। नेक्स्ट है मेंबरशिप। सो द इन ऑपरेटर्स check if the element is present in the tuples and returns true, else it returns false। बट दिस मीन कि ये हमें चेक करेगा कि जो टप्पल है उस टप्पल के अंदर वो एलिमेंट है, अगर वो एलिमेंट होगा तो हम उसको क्या करेंगे, वो क्या होगा हमारे पास ट्रू रिटर्न करेगा, एलिमेंट नहीं होगा तो वो हमें फॉल्स रिटर्न करेगा। अब इसमें जो है हमारे पास कि the not in operator returns true if the element is not present in the tuple, else it returns false। ठीक है, जो नॉट इन है, इन क्या करेगा, अगर होगा तो ट्रू करेगा, नॉट इन करेगा अगर नहीं होगा तो ट्रू करेगा, अदरवाइज फॉल्स करेगा। ये देखेंगे टप्पल 1 है, रेड ग्रीन और ब्लू वैल्यू है, क्या ग्रीन इन अ टप्पल 1 इट रिटर्न्स ट्रू। हियर टप्पल 1 रेड ग्रीन ब्लू, ग्रीन नॉट इन अ टप्पल दैट इज फॉल्स। कि अगर हमारे पास ग्रीन नहीं होता, ठीक है, तो हमें ट्रू बताता। नेक्स्ट हमारे स्लाइसिंग, लाइक योर स्ट्रिंग एंड लिस्ट स्लाइसिंग कैन बी अप्लाइड टू अ टप्पल आल्सो। इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हमारे पास एग्जांपल है ये। स्लाइसिंग का मतलब हमने पर्टिकुलर पार्ट के जो हमारे पास टप्पल है उसके पर्टिकुलर पार्ट्स को हमने एक्सेस करना है। T1 इज इक्वल टू एलिमेंट दी 10 20 30 40 50 60 70, यहाँ पे लिखा T2 इज इक्वल टू T2 to 6। अब 2 to 6 का मतलब कहने का मतलब क्या होगा कि कौन सा नंबर, ये वाला 0 1 2 ये, और उसके आगे कहाँ तक 6 तक, तो ये 2 हुआ है ना, ये 1 2 3 4, ठीक है, तो यहाँ तक हमारे पास ये रह जाएगा कितना, ये 2 3 4 5 क्या होगा उसमें हमारे पास n-1 हमारे पास ये रहता है, ठीक है। T2 हमने प्रिंट कर लिया। अगर 0 to लेंथ T का मतलब है टोटल जो एलिमेंट है, टोटल एलिमेंट कितने हैं इसके 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये 0 से लेके कितने पूरे एलिमेंट को ये प्रिंट कर देगा, तो ये प्रिंट कर देगा। आगे हमने लिखा क्या है, T4 इज इक्वल टू ये कॉलन 5, ये क्या करेगा 0 से लेके 5 तक, तो 0 से लेके 5 तक हमें एलिमेंट 1 2 3 4 5, तो ये हमें ये रिटर्न कर देगा। देन हमने लिखा क्या कॉलन 2। अब ये क्या करेगा कि जो पूरे एलिमेंट है उसमें हमें 2 के गैप के साथ हमें कितना है एलिमेंट को दिखाएगा। जैसे ये कितना है 2 हुआ, फिर 4 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर हमारे पास, तो ये एलिमेंट हमें ये डिस्प्ले करवा देगा। Then tuple method and built-in functions. So Python provides many functions to work on the tuples. List of some of commonly used tuple method and built-in function are. Here is a length function. Length function return the length or a number of element of the tuple passed as a argument. कि जो हमने लेंथ के अंदर में आर्गूमेंट पास किए होंगे किसके अंदर टप्पल के अंदर, उसकी लेंथ को क्या नंबर ऑफ एलिमेंट ये कैलकुलेट करके देगा। उधर टप्पल फंक्शन होगा, टप्पल फंक्शन क्रिएट अ एम्प्टी टप्पल्स इफ नो आर्गूमेंट इज पास, क्रिएट अ टप्पल इफ सीक्वेंस इज पास एज अ आर्गूमेंट। अब इसमें देखिए कि ये देखिए टप्पल हमने लिखा T12 34 67 89 10 प्रिंट L लेंथ T, तो अब जितने हमने क्या है एलिमेंट इसमें पास किए हैं वो हमें रिटर्न कर देते हैं, एलिमेंट है 5। और इन केस ऑफ टप्पल्स, टप्पल 1 इज इक्वल टू टप्पल, सो प्रिंट टप्पल इट रिटर्न द एम्प्टी फंक्शंस। Then next function we have your count function, return the number of times the given element appear in a tuple। तो ये हमारे पास है टप्पल, हमने इसके एलिमेंट लिखे और टप्पल 1 डॉट काउंट 10, टप्पल 1 डॉट काउंट
30। तो ये बताएगा कि जो हमारे पास 10 है वो कितने बार है, ये आप देख सकते हैं, ये 1, ठीक है, ये 2 एंड ये 3, तो ये रिटर्न कर दिया 3। ये 30 है तो 30 कितने बार हमारे पास है, 1 टाइम, रिटर्न कर दिया 1, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है ये इंडेक्स फंक्शन। इंडेक्स फंक्शन रिटर्न द इंडेक्स ऑफ फर्स्ट अकरेंस ऑफ द एलिमेंट इन द गिवन टप्पल, कि जो आपकी लिस्ट के अंदर फर्स्ट एलिमेंट हो, मतलब जिस पोजीशन फर्स्ट पोजीशन के ऊपर आएगा वो हम उसका के इंडेक्स से रिटर्न करें। एग्जांपल के लिए जब हमने लिस्ट यूज़ करी और हमने लिखा कि टप्पल 1 डॉट इंडेक्स 40, तो 40 का इंडेक्स यहाँ से ये कैलकुलेट करके बताएगा कितना, ये कितना 4। अब देखिए 0 1 2 3 4। अब हमने लिखा क्या है 30। अब 30 के लिए इंडेक्स कितना बताया, ये देखिए 0 1 2, तो इंडेक्स बता दिया उसने 2। अगर हम यहाँ क्या लिखेंगे, अगर हम इंडेक्स डॉट टप्पल डॉट इंडेक्स 10 करेंगे तो ये कितना बताएगा हमें 0। अब ये भी 10 है, ये भी 10 है, तो जो हमारे पहले एलिमेंट होगा उसका इंडेक्स ये बता देगा। नेक्स्ट है सॉर्टेड, टेक्स द एलिमेंट इन द टप्पल्स एंड रिटर्न अ न्यू सॉर्टेड लिस्ट। इट इज़ नोटेड दैट द सॉर्टेड डज नॉट मेक एनी चेंज टू द ओरिजिनल टप्पल्स। जो एलिमेंट हैं टप्पल के ओरिजिनल उसमें से कोई चेंज नहीं करेगा, लेकिन उसके एलिमेंट को क्या करेगा, सॉर्ट करके हमें दिखाएगा। अगर हम देखेंगे, देखिए ये है टप्पल 1 क्या है, रामा, हीना, राज, मोहसिन, आदित्य। सॉर्ट प्रिंट सॉर्टेड टप्पल्स, तो ये क्या करेगा, अल्फ़ाबेटिकली हमें सॉर्ट करके बता देगा। नेक्स्ट फंक्शन हमारा मिनिमम फंक्शन, रिटर्न द मिनिमम और स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑफ द टप्पल्स। मैक्स फंक्शन रिटर्न द maximum or largest element of the tuple, and sum function return the sum of element of the tuples, की हमारे पास उस टप्पल के अंदर जो एलिमेंट है उनका टोटल सम कितना होगा। एग्जांपल के लिए हम देख लेते हैं, टी लिया हमने, टी इज इक्वल टू 12 45 78 234 5 43 75। प्रिंट मिनिमम टी, इट विल रिटर्न 12, देन मैक्सिमम इज 5 4 3 एंड sum is equal to 987. A program to find the minimum maximum mean of a value stored in a tuple। इसके लिए हमने क्या किया कि सबसे पहले एक हमने क्या लिया, एक एम्प्टी टप्पल नंबर, हमने एम्प्टी टप्पल लिया, ठीक है, क्रिएट एम्प्टी टप्पल एज अ नंबर, ठीक है। ये हमने किया कि इंपोर्ट स्टैटिक से मैंने एक पैकेज इंपोर्ट कर लिया, क्योंकि हमें एक यहाँ पे मेन निकालना है, क्योंकि अभी तक हमने उसको पढ़ा नहीं है। तो हमने एक बिल्ट इन फंक्शन जो है पैकेज को इंपोर्ट कर लिया, जिसका हम फंक्शन स्टैटिक्स को हम यूज़ करेंगे। ये एन लिखा हमने, इंट इनपुट हाउ मैनी नंबर्स यू वांट टू इंटर, सो फॉर आई इन रेंज 0 to n। जितने हमने यहाँ पे n की वैल्यू इनपुट करेंगे उतनी हमें ये वैल्यू हमसे एक्सेप्ट करेगा। नम इज इक्वल टू इंट इनपुट, तो सिंपली हमसे नंबर इनपुट कर लेगा। नंबर इज इक्वल टू, ये जो टप्पल था, टप्पल इज इक्वल टू नंबर्स प्लस नम। अब नम के अंदर जो आप वैल्यू यहाँ से इनपुट करेंगे वो क्या होती चलेगी, इस नंबर के अंदर स्टोर होकर यहाँ पे असाइन होगी इसको, ठीक है। सो इट विल असाइन द नंबर्स इंटर्ड बाय द यूजर टू टप्पल members numbers। print the number of in the tuple are print numbers, कि जितने हमारे एलिमेंट है वो आ जाएंगे। the sorted number in the tuples are, ये हमने क्या किया, उसको सॉर्ट कर लिया, कि हम जो है जब इनपुट कर रहे हैं तो हम जो है नंबर अपने आप ही इंटर कर रहे हैं, कि हम ये कोई प्रॉपर ऑर्डर में उसमें नहीं करेंगे, हम लोग सिंपल हम नंबर इनपुट कर देंगे। देन प्रिंट सॉर्टेड नंबर, ये हमने सॉर्टेड नंबर को प्रिंट कर लिया हमने। देन वी हैव टू फाइंड द मैक्सिमम, देन प्रिंट मैक्स नंबर। देन मिनिमम प्रिंट करने के लिए द मिनिमम नंबर इज प्रिंट मिनिमम नंबर्स। देन प्रिंट मीन्स इज प्रिंट स्टैटिक्स डॉट मीन नंबर। अब यहाँ पे ये फंक्शन हमने यूज़ किया है, ये स्टैटिक्स का हमने मीन फंक्शन। तो स्टैटिक्स हमारे पास एक क्या है, बिल्ट इन पैकेज है, ठीक है।
जिसके अंदर हमारे पास कितने स्टैटिकल फंक्शन जो है हमारे पास मीन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये सारा इसमें इंक्लूड रहता है। जब इसको हम रन करेंगे, ठीक है, तो ये हमने 5 एलिमेंट हमने इनपुट किए 34, 23, 11, 45, 6। तो जब हमने इसको प्रिंट करवाया तो जो हमने जिस ऑर्डर में एलिमेंट स्टोर किए थे वैसे हमारे पास ये प्रिंट हो गए। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया कि इनको हमने क्या किया सॉर्ट हमने ये फंक्शन यूज़ किया सॉर्ट, ठीक है। तो ये हमारे पास असेंडिंग ऑर्डर में आ गया। अब हमने यहाँ पे क्या किया कि 40 मैक्सिमम किया, तो मैक्सिमम हमने लिस्ट देखा 45 ये हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। देन मिनिमम हमारे पास वैल्यू आएगी 6 और इसका जो मीन है वो 23.8 हमारे पास रहेगा। नेक्स्ट है प्रोग्राम टू काउंट द फ्रीक्वेंसी ऑफ एलिमेंट इन अ टपल्स। अब हमने क्या किया है कि एक हमने टप्पल लिया, उसके अंदर एलिमेंट को इनपुट करवाया और हमने ये देखना है कि उस एलिमेंट जो टप्पल है उसके अंदर कौन सा एलिमेंट कितनी बार रिपीट हो रहा है या किसमें अकर कर रहा है। तो ये सिंपल पहली वाली लाइन था कि ये टप्पल लिया हमने क्रिएट किया जिसके अंदर क्या है वैल्यू स्टोर होनी है। एक वेरिएबल एन लिया, एन के अंदर हमने ये इनपुट किया कि कितने हमने उसके अंदर नंबर इनपुट करवाने हैं। अगेन फॉर आई इन रेंज 0 to n नम इज इक्वल टू इंट इनपुट, यहाँ से जो नंबर हम इनपुट करवा देंगे और ये नंबर इज इक्वल टू नंबर्स प्लस नम, ये वैल्यू इसमें स्टोर हो जाएगी। नाउ प्रिंट द नंबर इन अ टप्पल, हमारे से नंबर प्रिंट। अब हम ये चाहते हैं कि हम उस टप्पल में से पर्टिकुलर एलिमेंट का देखें कि वो कितने बार हमारे पास अकर कर रहा है। तो इसके लिए हमारे पास हमने यूज़ किया कि ये n1 इज इक्वल टू इंट इनपुट enter the number you want to count frequency in the tuple, c1 is equal to numbers dot count n1, ठीक है। so it will count the frequency of the number in a tuple, so print the frequency of tuple is n in a tuple is c1, so how many number you want to enter, I have right here 5, then I have input 12, 13, 12, 14, 12, 5 element. Then after that the element of list will be displayed. Now enter the number you want to count the frequency in the tuple. I have written here, but how many? 12. So the frequency of number 12 is 3. तो यहाँ पे ये जो फंक्शन था, कौन सा फंक्शन, यहाँ पे ये नंबर डॉट काउंट फंक्शन। तो ये आपने काउंट फंक्शन पढ़ा था कि ये काउंट करेगा कि पर्टिकुलर जो नंबर है उस लिस्ट के अंदर कितनी बार वो अकर करेगा। अब इसके लिए मैंने जो यूज़ किया हुआ है वो कंप्यूटर साइंस विद पाइथन बाय एनसीईआरटी का रेफरेंस दिया है, ठीक है। तो उसका जो कंप्लीट चैप्टर है आपके पास यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। और देन है यहाँ पे अवेलेबल रहेगा। नेक्स्ट मैंने यूज़ किया है रेफरेंस के लिए स्मिता अरोड़ा, देन योर प्रीति अरोड़ा। और इसकी जो डेमो है, डेमो आपके लिए यहाँ पे जो नोटबुक की है यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। और इसके लिए अगर आपने लाइव जो हमारे पास सेशन रहेगा, तो लाइव सेशन हमारे पास ये CS learneasy.blogspot.com/home के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास ये जो इसका जो लाइव डेमोन्स्ट्रेशन वो अवेलेबल हो जाएगा। Thank you. So I am also very thankful to our Kivisaro Gurugram to give me a chance to prepare a lesson for you peoples. Thank you. Have a nice day.